ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ محترم فرمائیے۔ فون کیا تھا اس لیے اجمی بھائی کا سوئچ آف آ رہا تھا، پھر بات ہو گئی ارے تھی۔ بھائی میں کریلی چلا گیا تھا یار، ابھی آیا ہوں۔ اچھا بتائیے۔ ہاں تو اجمی بھائی کا سوئچ آف جا رہا تھا نا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایک بار کر کے دیکھو۔ اچھا اچھا ہو بھائی۔ گئی ویسے بات اجمی بھائی سے۔ ہیلو ہاں بولے۔ بھائی، اس کا کیا ہوا بینر کا؟ بینر کا تو آپ وہ حوالہ لکھ کے بھیجے نہیں؟ بھائی واٹس ایپ کھول کے دیکھا تھا میرے بھائی، کتنے دن ہو گئے بھیجے ہوئے۔ ایک منٹ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ چلو اچھا دیکھ لینا، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہلو۔ ہیلو۔ ہاں ہلو۔ ہاں السلام علیکم۔ ہاں کیا ہوا؟ ہلو بتائیے۔ ہاں کیا فون نہیں اٹھا رہے؟ ہاں ارے بھائی بارش ہو رہی تھی نا، فون بھیگ گیا تھا، بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اور ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ہاں بس الحمد للہ۔ جی بتائیے۔ پھر مجھے کیا کر رہا ہوں میں؟ ہاں بول رہا ہوں کہ یار آپ سے بولا نا کہ یار جب آپ کو ٹائم ملے تو ہر ایک ڈیلی ایک ایک موضوع پر ایک ایک ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو آپ نے موضوع ابھی تک رکھا نہیں، کس کہاں سے اسٹارٹنگ کریں گے بھائی؟ ہاں بھائی دیکھیے، گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ ہے یہ بتائیے؟ الحمدللہ، کیوں جب ایک ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، گفتگو جیسے بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ میرے بھائی قرآن حدیث کو مانیں گے نہیں، تو اب آپ کے سامنے پڑھ کے فائدہ کیا؟ تو پھر وہی بات ہے، قرآن حدیث آپ کو پڑھنے نہیں آتی، پھر آپ کیسے دعوت دیتے لوگوں کو یار؟ بھائی اگر ہمیں پڑھنی نہیں آتی ہے تو آپ خود میرے بھائی پڑھ کے چیک کر لیجیے گا، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اچھا، تو اب اس کا مطلب آپ نہیں کرو گے، سیدھا ہٹ رہے ہو؟ نہیں ہم تو کریں گے، اب آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے تو بتائیے کون سے ٹاپک پہ بات کریں گے؟ ہر ایک روز جب تک اس ٹاپک پر حل نہ نکل جائے، شانتی سے دیکھیے حل تو سینکڑوں سالوں سے نہیں ہوا ہے، تو آپ اور ہم کیا حل نکال لیں گے؟ ارے تو ہم جیسے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے، جب تک آپ کی کمی پوری دیکھیے، ہم کو 100% یقین ہے کہ آپ ہی غلط طریقے پہ چلتے ہیں، جب تک میں آپ کی غلط بے شک میرے بھائی، میں مانتا ہوں میں کوئی معصوم نہیں ہوں، میرے اندر بھی ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، لیکن جو میرا منہج ہے کتاب و سنت والا، اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی ہو تو بتائیے۔ منہج جو آپ کی منہج ہے تو اس میں کوئی حق پر ہے ہی نہیں نا، تو آپ کے منہج میں جیسے دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، کتاب اللہ وحیدہ تو اہل بیتی، ہاں کتاب اللہ سے مراد ہے اللہ کی کتاب قرآن شریف، اور اتنا تو اہل بیتی، اور اہل بیت کو، اہل بیت کا دامن تھام لو۔ تو آپ لوگوں میں کوئی اہل بیت نہیں ہے، اہل حدیث میں کوئی بھی سید نہیں ہے، سارے اہل حدیثی میرے بھائی اہل بیت سے۔ اور رہی بات سید کی، کتنے ہمارے اہل حدیث عالم میرے بھائی سید ہیں؟ ایک بھی سید نہیں ہے میرے بھیا۔ ایڈوکیٹ فیض سید جا کے میرے بھائی ٹائپ کیجیے۔ ایڈوکیٹ فیض سید نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے جا کے دیکھ لیں، اس کے صحیح نسب کچھ پتا کر لیں، جو بھی ان کا پورا نام ہے ایڈوکیٹ فیض علی سید۔ نہیں آپ ایسی تھوڑی سید ان کو دے دیں گے، سید جو ہے مطلب آپ خالی سید ان کو مانیں گے جو سید ہاشمی میاں ہیں، تو وہ اصلی سید ہیں، باقی سب نقلی سید ہیں۔ تم بولنے لگا، بات سنو، اصلی اور نقلی کی بات نہیں ہے، تو آپ ہی کہہ رہے ہیں مانیں گے نہیں، جب میرے بھائی بندے کو ساری دنیا جانتی ہے فیض سید، آپ کہہ رہے ہیں سید نہیں مانیں گے؟ کوئی نہیں جانتا نسب کہاں، ان کا سلسلہ کہاں سے، آپ بتائیں تو۔ ارے سلسلہ میرے بھائی آ گیا نا، فیض علی سید۔ ارے یار علی سید کون ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں یہ بتاؤ، ہندوستان میں کس کس سیدوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے بتاؤ تو۔ اب یہ سب باتیں کوئی سوشل میڈیا پر اپنے خاندان کو تو نہ بتاتا ہے۔
देखो, और हमारे मनहज वाले लोग जो है वो खानदान के बलबूते पे नहीं उछलते हैं, वो तौहीद के मेरे बलबूते पे उछलते हैं। नहीं, तो एक भी सैयद तुम्हारे खानदान में देखिए नहीं है। जैसे आपके हाशमी मियां है, वो खुलेआम पब्लिक में झूठ बोल देते हैं कि मेरे अंदर अली का खून दौड़ रहा है, आले रसूल का खून दौड़ रहा है, तो इस तरीके से इतना बड़ा झूठ हम लोग नहीं बोल सकते ना। क्या चीज? और जो ये शेख है, सैयद है, खान है, पठान है, अंसारी है, किदवई है, कुरैशी है, ये सब मेरे भाई सरनेम है। इससे अल्लाह के नजदीक ना तो आप अफजल हो जाएंगे, ना मेरे भाई बिल्कुल आप मेरे भाई एकदम डाउन हो जाएंगे। ये सरनेम है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, वो आप माज़अल्लाह बोलते रहिए, क्योंकि जिसने मेरे भाई जात पात में मेरे भाई इस्लाम को बांटा है वो तो आपके आला हज़रत हैं, उनके नजदीक छुआ छूत बहुत है ना। नहीं, तुम्हारे अंदर यही हकीकत समझ में नहीं आता। अच्छा भाई, फतावा आला हज़रत का मेरे भाई आप पढ़ के देखिएगा, उसमें खुद लिखा हुआ है कि जो नाई है, मनिहार है, मोची है, धोबी है, ये जलील कौम में है, तो उनके नजदीक तो जात पात है ना, लेकिन हमारे इस्लाम में जात पात नहीं है। देखो क्यों नहीं है? अल्लाह खुद माज़अल्लाह के जात पात मेरे भाई इस्लाम में होगी। इस्लाम तो वो है कि चाहे छोटा हो चाहे मेरे भाई ऊंचा हो, अल्लाह के सामने सब एक सफ में खड़े होते हैं। वो बात नहीं, मसला अल्लाह की इबादत की बात नहीं हो रही। क्यों? अल्लाह खुद अहले बैत का जिक्र बुलंद किया है, ठीक है? अहले बैत वो अलग मसला है, अहले बैत कोई मेरे भाई जात थोड़ी ना है। क्यों जात नहीं है? हाँ, सैयद जो कहते हैं क्या वो ये जात है? अहले बैत क्या है? हमें भाई क्या मेरे भाई कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं प्यारे भाई, ये बताओ। तुम खुद नहीं पढ़े लिखे हो। खानदान और अहले बैत मेरे भाई यानी कि नबी की जो फैमिली है, परिवार है, वो है अहले बैत। उन्हीं के खानदान वाले चलते आ रहे हैं, उन्हीं को ही कहते हैं। अच्छा ये बताओ, फिर जो उनके मेरे भाई चाचा थे, ठीक है, तो फिर वो भी अहले बैत में हो गए फिर आपके हिसाब से? फिर कहाँ से चला नसब? कहाँ से? अल्लाह के रसूल नसब मेरे भाई ये बताइए, आपने कहा कि अल्लाह के नबी के खानदान वाले, तो खानदान में तो उनके चाचा भी थे। नहीं, तो तुम्हारे अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, अबू तालिब भी थे खानदान में ना। जब कलमा ही नहीं पढ़े तुम अबू तालिब। हाँ, तो अब आपने मान लिया ना कि कलमा मेन है, यानी कि ईमान मेन है, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि कोई चाहे शेख हो, सैयद हो, पठान हो, खान हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, अल्लाह के नजदीक सबसे मोतबर वो है जो तकवे में, अल्लाह के खौफ में सबसे आगे हो। नहीं, अल्लाह के नजदीक। और ये बात अल्लाह के नबी ने खुद कहा है मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने खुद कहा है कि कोई काला वो किसी गोरे से अफजल नहीं है, और कोई गोरा किसी काले से भाई को अफजल नहीं है, कोई अरब वाला अजमी से अफजल नहीं है, और जो अजमी है वो अरब से अफजल नहीं है। तो यानी कि इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, कुरान में सुनो, कुरान में जब अहले बैत का जिक्र, अरे अहले बैत का जिक्र आया है तो क्या करें मेरे भाई, क्या जात पात बना लें? हाँ, कुरान में अहले बैत आया तो क्या जात पात बना लें? क्यों? अहले बैत का मकाम बहुत, यानी कि जो नाई है, मनिहार है, मोची है, धोबी है, उनको मेरे भाई जलील बना दें? सब जितनी रातें हैं सब अहले बैत से कम मरतबे वाले हैं। कम अहले बैत को क्यों? अरे भाई, अहले बैत के सदस्य में तो क्या जलील बना दें हम? जलील को कौन बना रहा है? जलील आला हज़रत क्या बना रहे हैं? उन्होंने खुद मेरे भाई फतवा दिया है ना। हिंदू लोग हैं दो भी, ठीक है, हिंदुओं की बात है। अरे भाई वो नहीं, मुसलमानों में भी है ना भाई, नाई हो गए, मनिहार हो गए, धोबी हो गए, और जो खाल पकाने वाले होते हैं, ये सब मेरे भाई जलील कौम है। आला हज़रत ने मेरे भाई लिखा है। सुनो, कुरान हदीस समझते नहीं हो। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया किताब, कुरान हदीस अब आपसे समझना पड़ेगा, इतने बुरे ना है। अच्छा हाँ ठीक है भैया, पहले आपके तो समझ में आ जाए प्यारे भाई, आप कुछ समझे नहीं। तुम खुद बोल रहे हो कि आपसे देख मैं तेरे से बहुत अहले बैत की हम इज्जत करते हैं, उनका जो मनहज है हम उस पे चलते हैं, किताबो सुन्नत पे, ना कि अहले बैत के नाम से अपनी जात पात अलग कर लेते हैं। सुन, अल्लाह के नबी ने जो भी अपने आप को सैयद कहे उसके लिए क्या हुक्म है मालूम है तुमको? क्या हुक्म है बताइए? क्या चीज? अगर कोई सैयद है तो क्या हुक्म है उसके लिए? क्या सैयद ना हो, अगर वो ऐलान करे भिगोरा पी के कि मैं सैयद हूँ, उसके लिए क्या हुक्म है शरीयत में? आप बताइए ना भाई। तुमको नहीं मालूम? आज तक पढ़े? हमारे वहाँ तो ये सैयद खान पठान ये एक सरनेम है। नहीं, तुम्हारे वहाँ हाँ तो तुम्हारे वहाँ, हमारे वहाँ से मतलब जो हमारे मेरे भाई जो कुरान हदीस से जो हमारा इस्लाम है, आप बरेलवियों के नजदीक क्या ये आप बताइए ना। नहीं, कुरान भाई तुम कुरान हदीस को मानते ही नहीं, क्योंकि कुरान में जब अहले बैत का मर्तबा बुलंद बताया, कुरान में आप हमें एक आयत बता दीजिए कि जो सैयद है वो अफजल है, बाकी लोग मेरे भाई उसके नीचे आते हैं। बेशक अफजल है। चलिए आयत पढ़िए फटाफट।
फटाफट आयत पढ़िए। भाई आपने कुरान पे झूठ बांध दिया है ना, मैंने तो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ा है, एक भी आयत में नहीं है कि जो सैयद है वो मेरे भाई बाकी लोगों से अफजल है। एक आयत में पढ़ूं, हाँ एक आयत पढ़ूं, तू सूरह नास तक पढ़ लिए पूरा? हाँ देखो हिफ्ज़ किया है। अरे भाई हाफिजे कुरान का दावा कौन कर रहा है भाई? तुम लोग अपनी अकल से फैसला कर लेते हो क्या? तू कैसे तूने बोल लिया कि मैंने सब? मैंने कहा सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतें भाई मैं पढ़ चुका हूँ, याद नहीं कर चुका हूँ। याद करना अलग होता है, पढ़ना देख के अलग होता है। हाँ तूने पढ़ लिया, पूरा समझ भी लिया है। हाँ समझा है, तभी तो मेरे भाई आप ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अरे कहाँ बोलती बंद हो जाती है? तो आपने कुरान पे झूठ बोला है कि सैयद अफजल है, कुरान में आया, वो कौन सी आयत में आया, कौन सी सूरह में आया, उसका हवाला दे दीजिए। तो बोल तो रहा हूँ कि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैंने अहले बैत को पाक कर दिया है, तो और किसी को अल्लाह ने कहा भाई अहले बैत बात चल रही सैयद मेरे भाई जात की, और आप पहुंचे जा रहे हो अहले बैत पे। सैयद किसे कहते हैं? सैयद किसे कहते हैं? जो अहले बैत होगा बस उसको कहते हैं सैयद। हाँ तो फिर जिसके नहीं मतलब जो अहले बैत होगा सिर्फ उसको सैयद कहेंगे, उसके अलावा नहीं कहेंगे, पक्का है ये? क्या मतलब जो अहले बैत होगा उसी के नाम से आगे सैयद लगेगा, बाकी लोग को नहीं कहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मेरा नसब, मेरा सिलसिला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चलेगा। अब जो उनके सिलसिला चलते आ रहा है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम, यानी कि जितने शिया हैं जो अपने नाम के आगे सैयद का इस्तेमाल करते हैं वो सब आपके नजदीक अहले बैत हैं। देखो पहले ही मैंने कहा है उनका शजरा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो भाई एक काम कीजिए, हाशमी मियाँ ने जो इतना बड़ा झूठ बोला था कि अली का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, उनसे कहिए सजरा पेश कर रहे अपना। जो तो सैयद तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद है, सैयद तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं मेरे भाई, मेरे ऑफिस में कितने सैयद दोस्त हैं मेरे। मैंने बोल भाई शादाब सैयद एक हमारा दोस्त है, अब क्या उसको मली का खून मान ले माजल्ला? अरे अली के खून या अली की औलाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन ईमान है मेरे भाई। नहीं तो जो अहले बैत, सुनो अल्लाह के रसूल नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी के बेटे हैं, उनका बेटा मेरे भाई, सगा बेटा, उनकी औलाद, उनका खून, वो मेरे भाई कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। क्यों? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। अबे सुन, मेरे आका ने दुआ किया है। देखो अबे तबे सब आप बात करने लगे तो ये इस तरीके से बदकलामी करके बात करेंगे तो 2 मिनट में आला हज़रत को नंगा करूंगा अभी, फिर आपको बुरा ना लगे। आला तुम तो बात ही नहीं सुनते हो। हाँ अल्लाह के रसूल ने दुआ क्या किया है कि आप फर्जी बात करते हो ना मेरे भाई। जब हमने कह दिया इस्लाम में कोई छोटा बड़ा जात पात नहीं है, बस बात खत्म हो जाती है। दूसरे उन्वान से बात करना है। हमें सिर्फ हमने अहले बैत को बताया कि अहले बैत मेरे भाई सबसे ज्यादा इस पूरी कायनात में अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो है असाबुल हदीस, उसके अलावा कोई मोहब्बत नहीं करता। कोई नहीं है अहले बैत में मेरे भाई कभी तीजा चरिस्वा छठी चिल्ला कुंडे बस्ती 11वीं 12वीं ये सब कभी नहीं मनाया। अहले बैत ने कभी अल्लाह के नबी की पैदाइश पे ईद मिलादुन नबी कभी नहीं मनाया। अहले बैत जो थे वो उस तरह नमाज पढ़ते थे जैसे अल्लाह के नबी पढ़ते थे। तो अहले बैत से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे भाई असाबुल हदीस करते हैं। बरेलवी तो अहले बैत के नाम पे वो अपनी बिदअत इजाद करता है। हाँ अभी तुमको बस बोलने, अभी तुमको यही नहीं मालूम अहले बैत किसे कहते हैं, सैयद किसे कहते हैं और अहले बैत का भाई देखिए ये अब इतनी बड़ी जानकारी तो आप ही के पास होगी कि सैयद क्या है, अहले बैत क्या है। हम लोग को ये लग रहा है जैसे नूता चूसने वाले बच्चे हैं। क्या है इकरार तूने खुद किया है कि कुरान शरीफ में कहीं भी अहले बैत का मर्तबा नहीं आया है, कहीं भी उनका जिक्र नहीं है माज़अल्लाह। ये देखिए खुले आम झूठ बोले यार, ऑडियो टेप ले रही है मेरे भाई, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फोन में ऑटो कॉल है। मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि कुरान में माज़अल्लाह अहले बैत का कोई नामो निशान नहीं है। जबरदस्ती झूठ मेरे ऊपर थोप रहे हो। मैंने बोला है कि उनका मर्तबा अफजल है, तू बोल रहा है कि मैंने बात चल रही मेरे भाई सैयद पे, सैयद से कयास करके तुम अहले बैत के नाम से मेरे ऊपर झूठ बांध रहे हो। तुम लोग क्या है, कितने बड़े झूठे मक्कार हो भाई। जो खुद झूठे मक्कार हो। अच्छा ये बता दीजिए, मतलब ये झूठ मतलब बचपन से आप बोल रहे हैं या बरेलवी बनने के बाद झूठ बोलना स्टार्ट किया है? मुझे या झूठ बोलने की कोई मतलब आपको ये मतलब दरगाह मजार आस्थाने वाले कुछ पैसा ऐसा देते हैं क्या झूठ बोलने? नहीं कुरान हदीस से झूठ बोलते हो तुम, कुरान हदीस पढ़े। अभी आपने मेरे ऊपर बोतान बांधा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में अहले बैत की शान भाई उसमें नहीं है, तो ये मैंने कब कहा आपसे बताइए? चल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के अरे ऑडियो टेप है ना, तुम ऑडियो सुन लो। अभी यही ऑडियो तुम्हारे पास भेजे दे रहा हूँ पूरी मुकम्मल। मैंने कब बोला? भेज देना। मैंने जब ये बोला है कि सैयदों का और अहले बैत का
قرآن میں افضل بتایا گیا ہے. سب پورے مسلمانوں میں سب سے افضل اہل بیت اور سید ہیں. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جو سید ہیں وہ صرف اہل بیت ہی میرے بھائی اپنے نام کیا کہ بھائی وہ لگاتے ہیں یا باقی لوگ بھی؟ تو آپ بتا ہی نہیں رہو. تو وہی تو میں نے بولا اصلی سید. اب اصلی سید وہی اچھا ہوتے ہیں. اصلی سید اور مطلب جو یہ نقلی سید ہے یہ والا میٹر چل رہا ہے. ہاں کیا اصلی نہیں میٹر نہیں چل رہا ہے. میں نے جو سید ہیں میں نے بھائی کہہ دیا مطلب مین جو سید ہیں جن کے نام کے آگے سید ہیں وہ سب میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان میں دوڑ رہا ہے. یہ ان کے خون سے ان کے نسب سے ان کے سلسلہ سے چلا ہے جو ان کے خون چلے سے ٹھیک ہے. یعنی کہ ایڈوکیٹ فیض سید الحمدللہ واقعی میں ان کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی میرے بھائی نسل ہے اس کا خون الحمدللہ دوڑ رہا ہے. وہی تو میں سوچوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو اتنے علم سے نوازا ہے. بے شک وہ میرے بھائی صحابی کے میرے بھائی جو میرے بھائی طریقے پہ ہیں الحمدللہ یہ تو بات صحیح ہے. لیکن اب جو ہاشمی میاں ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور علی کا خون اپنے اندر زبردستی دوڑا لیتے ہیں وہ پکا جھوٹا سید ثابت ہو گیا.